बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 सब्जेक्ट सोशल साइंस, टॉपिक टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले वीडियो में एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ा था। तो हमने पढ़ा था एग्रीकल्चर, काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और अब आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग यानी फार्मिंग की किस्में। Farming is practiced in various ways across the world, depending upon the geographical condition, demand of produce, labor and level of technology. Farming can be classified into two main types. These are subsistence farming and commercial farming। यानी पूरी दुनिया में ये जो फार्मिंग है, ये इसका दारोमदार होता है जियोग्राफिकल कंडीशन पर, और डिमांड, प्रोड्यूस, लेबर और लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये जो फार्मिंग है, इसको दो हिस्सों में क्लासिफाइड किया गया है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। फार्मिंग नंबर 1, सब्सिस्टेंस फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में सब्सिस्टेंस फार्मिंग के बारे में। तो ये जो कमर्शियल फार्मिंग है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग है जो दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज प्रैक्टिस्ड to meet the needs of the farmer's family. Traditionally, low levels of technology and household labor are used to produce on small output. Subsistence farming can be further classified as intensive subsistence and primitive subsistence। यानी subsistence farming जो है, ये ऐसी फार्मिंग है जो कि आमतौर पर लो लेवल टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है, और घर के हाउस होल्ड जो मेंबर हैं वो इसमें सिंपल टूल्स की मदद से खेती बाड़ी करते हैं और अपने ज़रूरियात की पैदावार उगाते हैं, जो उनको अपनी ज़रूरियात के लिए आउटपुट निकलता है उस फार्मिंग से, उसे सब्सिस्टेंस फार्मिंग कहते हैं। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी आगे जो है, ये दो तरह की होती है। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर
और नंबर 2 आ गया प्रीमेटिव सबसिस्टेंस subsistence एग्रीकल्चर। तो ये भी सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो है इसमें इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर आता है और प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, द फार्मर cultivates a small plot of land using simple tools and more labor. Climate with large number of days with sunshine and fertile soil permit growing of more than one crop family on the same plot. Rice is the main crop. Other crops include wheat, maize, pulses, and oilseed. Intensive subsistence agriculture is prevalent in the thickly populated areas of the monsoon regions of South, Southeast and East Asia. तो उसके बाद ये जो आ गया प्रीमेटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसे हम पुराने तरज की एग्रीकल्चर कहेंगे। जैसे कि पुराने ज़माने में लोग जंगल साफ करके कुछ मुद्दत के लिए वहाँ पर खेती बाड़ी करते थे, और जब उस जगह की ज़मीन की जरखेज़ी ख़त्म हो जाती तो फिर वे दूसरी जगह जंगल साफ करके खेती बाड़ी करते थे, तो उसे प्रीमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। प्रीमेटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर में आगे दो तरह की होती है। पहले आ गई शाफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हेडिंग। शाफ्टिंग कल्टीवेशन इज practiced in the thickly forested areas of Amazon basin, tropical Africa, parts of Southeast Asia, and Northeast India. These are the areas of heavy rainfall and quick regeneration of vegetation. A plot of land is cleared by felling the trees and burning them. The ash are then mixed with the soil, and crops like maize, yam, potatoes, and cassava are grown. After the soil loses its fertility, the land is abandoned and the cultivator moves to a new plot. Shifting cultivation is also known as slash and burn agriculture. Nomadic heading is practiced in the semi-arid and arid regions. Semi-arid means खुशक, यानी semi-arid कम खुशक, and arid regions खुशक इलाके of Sahara, Central Asia, and some parts of India like Rajasthan and Jammu and Kashmir. In this types of farming, herdsmen move from place to place with their animals for fodder and water along defined routes. This types of movement arises in response of climatic constraints and terrain. Sheep, camel, yak, and goats are most commonly reared. They provide milk, meat, wool, hides, and other products to the herders and their families. यानी नोमैडिक हेडिंग, जिसे हम कहेंगे खाना बदोश। नोमैडिक मीन खाना बदोश है, हेडिंग हो गए चरवाहे। ये जो चरवाहे जो हैं ये आमतौर पर राजस्थान, जम्मू कश्मीर और हिंदुस्तान के कुछ इलाकों में होते हैं, जो कि एक जगह से दूसरी जगह अपना माल मवेशी लेकर घूमते रहते हैं। तो जिस जगह वो
आर्जी तौर पर 2 या 4 या 6 महीने के लिए राइस पजीर होते हैं, तो वहाँ वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खेती बाड़ी करते हैं, तो इसे नोमैडिक हेडिंग कहते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही है।